Hello everyone, this is Jenish Kotari here and welcome to this amazing accounts lecture. आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. Okay? So हम इस चैप्टर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच चुके हैं. बस कुछ few sums are still remaining and after solving those sums, I feel ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही स्पष्ट and concepts एकदम ही क्लियर हो जाने चाहिए. Okay? The journal entries are the key to this particular chapter. If you have understood the concept of all the journal entries very nicely, तुम लोग अगर खुद से journal entries frame कर पाओगे, looking at the situation, looking at the transaction, then believe me, this chapter is quite simple. And all the journal entries which are repeating again and again, उसको तुम लोग learn भी कर सकते हो, so that in your board exam it will not take you much time to think and understand the concept. तो हम क्या करेंगे? हम practice करेंगे सारे sums को. Of course, we will try to keep our concepts 100% clear and the similar entries हम क्या करेंगे उसको learn कर लेंगे. Is that fine? So इस particular video में हम क्या करेंगे? हम और आगे बढ़ेंगे, हम थोड़े और sums solve करेंगे and after that one more video is going to come of this particular chapter and then we will be done with the entire chapter of bills of exchange. Okay? So whatever questions, objectives is given in your textbook, you are expected to solve that also. Okay, because as and when we will be having our test, we will make sure that we will be asking you all those questions, objective questions also in your test, including your sums. Okay, so in this particular chapter video हम क्या करेंगे? हम sum की शुरुआत करेंगे. So we will just see the sum right now. So the question is given in your textbook page 307. Journalize the following transaction in the books of Bharti. Again, they have not given us any date in this particular sum, so we will be writing the serial number 1, 2, 3, 4. But if in case they have given us the date, we have to make sure that we write the exact same date. So in this particular sum also there are 4 different transactions. There will be one drawer and many drawees. The same person in the books of Bharti can be drawer as well as drawee according to the transaction given to us. So we will read the question transaction wise one and after another and we will keep solving the sum on the board. So what you can do is you can take the screenshot or you can open your textbook page 307 and we will start with the sum right now. Okay, so हो जाइए शुरू. तो स्टूडेंट्स हो जाइए शुरू का मतलब ये है कि तुम्हें ये सम खुद से ट्राई करना है. You have to try to solve the sum on your own and see if you are able to do it or not. Okay, then what you can do is you can look on the board in the video and you can see whether you have written the answers right or wrong. Because it is high time by now, you should be able to solve your sum on your own. Okay, so let's start with the first one. Bank informed that अच्छा हम कौन है? In the books of Bharti. हम ये सम कहाँ कर रहे हैं? In the books of Bharti कर रहे हैं. Okay, बैंक ने inform किया that Amit's acceptance मतलब Amit is a drawee. Amit का acceptance मतलब Amit is a drawee of rupees 15,750 टू बैंक फॉर कलेक्शन. हमने बिल किसको दिया था? बैंक फॉर कलेक्शन को दिया था और वो बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया. अरे बहुत अच्छी बात है. एंड अमिट एक्सेप्टेंस एंड बैंक चार्जेस डेबिटेड और बैंक ने क्या किया? कुछ चार्जेस चार्ज किए 150 रुपीज. ओके, तो ये बिल क्या हो गया? ऑनर हो गया. वेरी गुड. तो हमारे पास पैसे आने वाले हैं. हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1. हमारे पास पैसे आ रहे बैंक अकाउंट डेबिट. उन्होंने क्या किया? हमारे बैंक चार्जेस कट किए. तो हम क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस नॉमिनल अकाउंट डेबिट और लॉस एंड एक्सपेंसेस. बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ये बिल किसके पास था? किसने दिया हमको? हु इज द गिवर? बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज द गिवर. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट. ओके, तो बेसिकली बिल कितने का था? बिल था 15,750 का. 15,750. बैंक चार्जेस कितना था? 150 रुपया था. 150 रुपया. ओके, एंड फाइनली बैंक में कितने पैसे आए? 15,600. 15,600. तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन. ये क्या हो गया? ऑनर हो गया. ऑनर्ड एंड बैंक ने क्या किया? थोड़े चार्जेस कट किए. बैंक डिडक्टेड बैंक चार्जेस, ऐसा हम लिख सकते हैं. और यहां पे हमारा क्या होगा? ये ट्रांजैक्शन नंबर 1 हो गया समाप्त. ओके स्टूडेंट्स, सो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन. नेक्स्ट इज नितिन renewed his acceptance. नितिन ने अपना एक्सेप्टेंस रिन्यू किया.
हिज एक्सेप्टेंस, मतलब नितिन कौन हो गया, ड्रॉवी, मतलब हम लोग क्या है, ड्रॉवर है। अच्छा, न्यू एक्सेप्टेंस, रिन्यू करना मतलब पहले क्या करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। सो नितिन रिन्यूड हिज एक्सेप्टेंस फॉर 22,000 बाय पेइंग 2,200 इन कैश। तो रिन्यू का करना का मतलब है पहले ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे। तो आइए अब हम क्या करेंगे, ओल्ड बिल को पहले कैंसिल करेंगे। कैंसिल करना मतलब डिसऑनर करना, डिसऑनर करना मतलब क्या होगा, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ड्रॉवी कौन है, नितिन है, नितिन, तो क्या लिखेंगे, नितिन्स अकाउंट डेबिट, नितिन्स अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, बिल का अमाउंट कितना दिया हमें, 22,000 रुपीज दिया है, 22,000 रुपीज, 22,000 रुपीज। और ये बिल क्या हो गया, बिंग बिल डिसऑनर हुआ है, बिंग बिल कैंसिल लिखो तो भी चलेगा, डिसऑनर लिखो तो भी चलेगा, बिंग बिल कैंसल्ड। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, उसने क्या किया, बाय पेइंग 2,200 ऑन द स्पॉट, अभी 2,200 दिया हमको, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। मैंने बताया था इंटरेस्ट हमेशा क्या करता है, डबल डेट करता है। इंटरेस्ट जिसके साथ जाएगा उसके पहले आएगा। इस सम में इंटरेस्ट किसके साथ जा रहा है, पार्ट पेमेंट के साथ या न्यू बिल के साथ, यस, पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है, इन कैश अलोंग विद इंटरेस्ट, मतलब अभी का भी 2,200 पे किया और इंटरेस्ट भी अभी पे किया, अभी पे किया, ओके। ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट कभी भी कितने में चार्ज होता है, ऑन द रिमेनिंग अमाउंट। देखो यहां पर देखो, बिल का अमाउंट दिया था 22,000 रुपीज, माइनस ऑन द स्पॉट कितना पे कर रहा है, 2,200, तो दैट कम्स टू हाउ मच, 19,800, मतलब कहना है ये रिमेनिंग अमाउंट है, ओके। तो अब 19,800 पे हम क्या चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 19,800। अच्छा, इंटरेस्ट कितने मंथ्स के लिए चार्ज करना हमें, इंटरेस्ट इज चार्ज फॉर 3 मंथ्स एंड 10%, 10% इंटू 3/12, 0 0 0 कट, 1 जा 4 जा, तो ये क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा, तो क्या आएगा, 495, कितना आ जाएगा, 495 आ जाएगा। लेट मी चेक वंस, 4 बाद में कितना बचेगा, 38, तो 9 जा 36, 220, तो 495, तो अमाउंट इज 495। तो हमारे इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा, 495, तो क्या एंट्री आएगा, नितिन्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट आता है, टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, ऑब्वियसली 495, हमने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, 495 बिंग इंटरेस्ट चार्ज। अब क्या होगा, पार्ट पेमेंट होगा, लेकिन पार्ट पेमेंट के साथ हमने क्या पे किया है, अलॉन्ग विद 2,200 इन कैश अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, मतलब कैश, इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट दोनों साथ में पे हुआ है। तो टोटल हमारे पास पैसा आया, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश बैंक अकाउंट डेबिट, हु इज द गिवर, हु इज द गिवर, टू नितिन्स अकाउंट, नितिन इज द गिवर, नितिन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा, देखो अमाउंट कितना आएगा, अभी ऑन द स्पॉट कितना पे किया, 2,200 ऑन द स्पॉट पे किया, प्लस इंटरेस्ट कितना है, 495, तो 596, 2695, हम यहां पे क्या लिखेंगे, बिंग पार्ट पेमेंट एंड इंटरेस्ट रिसीव, ओके। और फाइनली इतने के बाद हमने क्या किया, न्यू बिल बनाया, न्यू बिल बनाया, हमको बिल को रिन्यू करना था, तो रिन्यू करने के बाद पहले ओल्ड बिल कैंसिल किया, इंटरेस्ट चार्ज किया, पार्ट पेमेंट ऑन द स्पॉट पे किया। अब आएगा न्यू बिल, न्यू बिल की एंट्री क्या आएगी, सेम एंट्री जो बिल बनाने की एंट्री होती है, क्या लिखेंगे हम लोग, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द गिवर, नितिन, नितिन ने हमको दिया, टू नितिन्स अकाउंट। देखो टोटल बिल 22,000 का था, 2,200 तो अभी ऑन द स्पॉट पे कर दिया, तो न्यू बिल कितने का बनेगा, 19,800, न्यू बिल कितने का बनेगा, 19,800। मैं यहां पे क्या लिखूंगा, बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 months। यहां पे ये हो गया क्लोज, ओके स्टूडेंट्स। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, बिकॉज हम लोग को यहां पे क्या लिखना होता है, वंस द पेज गेट्स ओवर हम लोग बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखते हैं। हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ क्या कंप्लीट हुआ है, हमारा पेज कंप्लीट हो गया है, ओके। सो अज्यूमिंग दिस इज वन पेज ऑफ माइन
एंड एवरी टाइम व्हेन आई कंप्लीट माय एंटायर पेज हमें क्या करना होगा, हमें उसके एंड पे लिखना होगा बैलेंस कैरी डाउन या बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना होगा. सो व्हाट डू आई हैव टू डू, आई हैव टू प्लस द एंटायर अमाउंट. तो ये अमाउंट को प्लस करना कोई आसान काम नहीं होगा. इसके लिए हमें यहाँ पे बंद करना होगा 15,750. फिर क्या था 22,000 का, 22,000 और 495. फिर ये कितना है 2695 और ये 19,800. तो ये 0 हो गया, 1 कैरी. 10, 15, 24 2 कैरी. 9, 13, 19, 27 फिर से 2 कैरी. 18 और 7 कितना, 18 और 9 7, 7, 9, 11, 20 2 कैरी, 4, 5, 6. तो 60,740, 60,740 एंड 60,740. ये अभी हमारा ये पेज का क्या हो गया, टोटल हो गया है. ओके, तो अभी हम इसको क्या करेंगे, फिलहाल यहाँ पे ये रब कर देंगे और फिर हम लिखेंगे बैलेंस. हम क्या लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, बैलेंस कैरी डाउन. ओके, तो दिस इज बैलेंस कैरी डाउन सी एंड डी, बैलेंस कैरी डाउन और 60,740. यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये एंटायर पेज हो गया फिनिश. तो अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स. तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, बोर्ड को रब करना होगा. सो बोर्ड को रब करने की प्रक्रिया शुरू की जाए. ओके, तो बोर्ड रब करने की प्रक्रिया होती हुई समाप्त. मैंने क्या किया, आई हैव रिटन द टोटल 60,740 ओवर हियर अगेन एंड दिस इज माय बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द नेक्स्ट पेज. बैलेंस brought on the next page. Now what do I have to go? We have completed transaction number 2. Transaction number 2 में total 4 एंट्री थी. Now going for the transaction number 3, हम यहाँ लिखेंगे transaction number 3. क्या लिखा हुआ है, that Dhanashree who had accepted Bharti's bill, मतलब भारती in the book of भारती, मतलब ये transaction में हम कौन है, हम ड्रॉवी है. Okay students, of rupees 17,500 was declared insolvent हो गया. इंसॉल्वेंसी की कभी भी कितनी एंट्री होती है, 2 एंट्री होती है. You have to remember this students, इंसॉल्वेंट की 2 एंट्री, पहले बिल डिसऑनर करेंगे फिर बैड डेब्ट्स की एंट्री. ओके, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, याद रखना इसमें लिखा हुआ है दैट भारतीज बिल, मतलब वो बिल किसका था, भारती का था. और ये पर्टिकुलर सम में हम भारतीय मतलब हमारा बिल, मतलब हम कौन है, ड्रॉवी है. इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, तो क्या आएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट. तो क्या लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द ड्रॉवर, धनश्री. क्या नाम है, धनश्री अकाउंट, टू धनश्रीज अकाउंट. और बिल कितने का बना था, बिल था 17,500 रुपीज, 17,500 रुपीज. और हम यहां क्या लिखेंगे, बिल डिसऑनर्ड. बिल क्या हो गया, कंप्लीटली डिसऑनर्ड हो गया. और उसके बाद ओके, ये हमारा एंट्री नंबर 1 है. हमेशा इंसॉल्वेंसी की कितनी एंट्री आती है, 2 एंट्री आती है. क्या लिखा हुआ है, दैट ओनली 40% ऑफ द अमाउंट ड्यू कुड बी रिकवर्ड. जितना अमाउंट ड्यू था, ड्यू मतलब आउटस्टैंडिंग, उसमें से 40% रिकवर हो पाया. मतलब हम भारतीय है, हम क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गए, कंगाल हो चुके थे. और कंगाल होने के बाद टोटल हमको कितना चुकाना था, 17,500. लेकिन हम सिर्फ कितना चुका पाए, सिर्फ 40% चुका पाए. तो विल सी व्हाट इज 40%. अच्छा, तो अभी एंट्री क्या आएगी, लेट्स सी एंट्री क्या आएगी. तो धनश्री अकाउंट डेबिट, इसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेब्ट्स वाली एंट्री बोलेंगे. मतलब ड्रॉवर का बैड डेब्ट्स हो गया. ओके, तो हु इज द रिसीवर, धनश्री इज द रिसीवर. धनश्रीज अकाउंट डेबिट, धनश्री इज द रिसीवर. हमने उसको क्या दिया, क्या पूरा 17,500 दिया, नहीं. टू क्या आएगा, टू कैश बैंक अकाउंट. ओके, बिल कितने का था, 17,500 का था. लेकिन सिर्फ कितना चुका पाए, 40%. तो 17,500 का 40% करना पड़ेगा. 17,500 इंटू 40/100, तो कितना आएगा, 1750 इंटू 4, 0, 4 5 20, 2 कैरी, 4 8 7 28, 3 कैरी, 4 4, तो 7,000 कितना आएगा. हम सिर्फ 7,000 रुपीज ही चुका पाए. इसका मतलब क्या हो गया, बचा हुआ अमाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब उतना पैसा कम पड़ चुका है हमारे पास. 17,500 माइनस 7,000 कम्स टू 10,500. अब हम यहां क्या लिखेंगे, became insolvent and only
40% could be paid and balance amount transferred to deficiency account. मतलब हम क्या हो गए थे, हम हो गए थे इंसॉल्वेंट, और हम क्या कर पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हम उसको सिर्फ और सिर्फ 40% पे कर पाए। तो धनश्री का बिल कितना था, 17,500 का, तो सबसे पहले बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी 17,500। अब 17,500 में से हम सिर्फ कितना चुका पाए, 40%, दैट इज 7,000, मतलब 10,500 क्या हो गया, डेफिशिएंसी हो गया, मतलब उतने पैसे हमारे पास कम पड़ गए। ओके, नाउ गोइंग फॉर द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस। अब ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना शांति से। डिस्चार्ज और एक्सेप्टेंस मतलब हमारा एक्सेप्टेंस मतलब मैं कौन हूं, मैं ड्रॉवी हूं। मुझे क्या देना था, मुझे अपना डिस्चार्ज करना मतलब पैसे चुकाना है ना, डिस्चार्ज करना मतलब ड्यू डेट के दिन पैसे चुकाना। तो मैंने अपना एक्सेप्टेंस चुका दिया सविता को, कितने का था, 9,450। कैसे चुकाया, बाय एंडोर्सिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस। मतलब देखो मेरा जो बिल था ना, मेरा बिल किसके पास था, सविता के पास। तो सविता को बोला कि भाई आज हम बिल ऑनर करते हैं। ओके, तो सविता खुश हो गई, सविता घर आई, मैंने उसको रिटर्न में क्या दिया, पैसा नहीं दिया, मैंने उसको मेरा असेट दिया, मेरा बिल रिसीवेबल उसको दिया। आई गेटिंग माय पॉइंट। मतलब यूजुअली हम क्या करते हैं बिल ऑनर में, ड्रॉवी क्या करता है, पैसा देता है। यूजुअली केस में क्या आता है, लेट्स सी यूजुअल केस में क्या आता है, हमेशा यूजुअल केस में आता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर यहां पर मैं ड्रॉवी हूं, क्या मैंने उसको रिटर्न में कैश दिया, नहीं, मैंने उसको रिटर्न में कैश नहीं दिया। बाय एंडोर्सिंग मैंने उसको रिटर्न में क्या दिया, बिल रिसीवेबल दिया। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले नॉर्मली बिल ऑनर होता है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट आता है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ओके, उसने हमारा बिल हमको रिटर्न दिया, और यूजुअली हम उसको रिटर्न में क्या देते हैं, कैश। पर इस केस में क्या किया, बाय एंडोर्सिंग प्रवीण एक्सेप्टेंस, मतलब हमने उसको रिटर्न में क्या दिया, बिल रिसीवेबल दिया। ओके स्टूडेंट्स, बिल रिसीवेबल दिया। अच्छा, हमारी लायबिलिटी कितने की थी, 9,450 रुपए की लायबिलिटी थी। बिल्स पेबल मतलब मुझे 9,450 चुकाना था, लेकिन मैंने उसको क्या दिया, मैंने उसको बिल दिया, कितने का दिया, 9,000 रुपए का बिल दिया। ओके, तो बचा हुआ अमाउंट क्या हुआ, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, मुझे डिस्काउंट मिला है, क्रेडिट ऑन इनकम्स एंड गेन्स। यहाँ पे कितना, 450 रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। डिस्चार्ज आर एक्सेप्टेंस, मतलब मैं ड्रॉवी हो गया, पर मैंने उसको डिस्चार्ज कैसे दिया, कैश देके डिस्चार्ज किया, नहीं, मैंने उसको रिटर्न में क्या दिया, प्रवीण का एक्सेप्टेंस, मतलब प्रवीण का बिल जो मेरे पास था ना, वो मैंने रिटर्न में दिया। तो मेरी लायबिलिटी चुकाने के टाइम मैंने उसको कैश ना देते हुए मैंने उसको बिल दिया है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन बिल्स पेबल, बट रिटर्न में क्या दिया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट बिल रिसीवेबल। 9,450 की लायबिलिटी थी, पर मैंने उसको 9,000 रुपए में ही चुका दी, मतलब 450 में क्या हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ। ओके, तो क्या लिखेंगे पूरा, हम लिखेंगे बिंग 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 तो बिंग discharged our acceptance by endorsing प्रवीण एक्सेप्टेंस। मतलब हमने हमारा बिल डिस्चार्ज कर दिया, डिस्चार्ज करना तो हम लायबिलिटी से मुक्त हो गए। कैसे मुक्त हुए, सामने वाले को हमने हमारा बिल रिसीवेबल देके मुक्त हुए। ओके, तो हमने हमारा बिल उसको दिया है और हम उससे क्या हो गए, लायबिलिटी से क्या हो गए, मुक्त हो गए। फाइनली हम इसको क्या करेंगे, टोटल करेंगे, सम खत्म होने आ गया है। अच्छा, इसको टोटल करना होगा 60,740 प्लस 17,500 17,500 17 17 34 35,000 और ये कितना है, यहां पर आएगा 9450 0 9 7 प्लस 4 1 कैरी 10 15 1 कैरी, तो 1,05,190 1,05,190। लेट मी चेक फॉर अ सेकेंड, 1,05,190, इट्स अ परफेक्ट आंसर। 1,05,190 1,05,190। ओके, तो यहां पे हमारा क्या हुआ, सम नंबर 1 हो गया पूरा कंप्लीट। सो इसी तरह से हमने हमारा सम किया है कंप्लीट।
We'll move forward to our next sum now. Okay. So going with the next sum now. It's on page number 298 of our textbook. Journalize the following transaction of Arvind as on 24th October. So in this particular sum, what they have done is they have given us the date, and we will be writing the same date in all the transaction. Okay, on one particular day, this many transactions have taken place. So again, the same thing. We are not reading the entire sum right now. We will be solving the sum as and when we go ahead with the transactions. So you can just take the screenshot of the question, or else you can open a textbook on page 298 of the Maharashtra government. ओके और शुरू हो जाइए, फॉर्मेट वगैरह बना लीजिए अच्छे से, एंड यू हैव टू ट्राई सॉल्विंग सम ऑन योर ओन, एंड देन यू कैन लुक एट द वीडियो एंड सी इफ यू हैव डन योर वर्क प्रॉपर्ली और नॉट. ओके, या. दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत तू बन गया, खुद को जो मैं यू सौंप दूं, तेरी इजाजत तू बन गया. Let's start the sum number 16 in the books of Arvind and journal entries. Okay, don't look at the lyrics of the song. So हम यहाँ से सम की शुरुआत करेंगे. जनरल एंट्रीज लिख लिया हम लोग ने, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट वगैरह सब कुछ लिख दिया. हम अरविंद है इस पर्टिकुलर सम में, यू हैव टू रिमेंबर दैट. सो द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज, यहाँ पर हमको डेट दी हुई है 24 अक्टूबर 2019. तो 2019 की बात है ये, और 24 अक्टूबर, ओके 24 अक्टूबर है, और 24 अक्टूबर को क्या हुआ था हमारा, सबसे पहले दिस इज आवर ट्रांजैक्शन नंबर ए, और ए के अंदर देखते हैं रिन्यूड साइनाथ एक्सेप्टेंस. साइनाथ एक्सेप्टेंस मतलब साइनाथ कौन है, ड्रॉवी है. अच्छा, रिन्यू करना मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओल्ड बिल को कैंसिल करेंगे. तो अब इसी के अंदर बहुत सारी, देखो 24 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन नंबर ए में बहुत सारी एंट्रीज है, तो मैं यहाँ रोमन नंबर 1 लिख रहा हूं. ओके, 24 अक्टूबर को ट्रांजैक्शन ए में रोमन नंबर 1, सबसे पहले क्या हुआ, बिल को डिसऑनर कैंसिल करना होगा. जब भी रिन्यू करने की बात करेंगे तो पहले बिल को क्या करेंगे, पिछले बिल को डिसऑनर करेंगे. तो पिछले बिल को डिसऑनर करेंगे तो एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. ड्रॉवी कौन है, साइनाथ. तो यहां क्या लिखेंगे, साइनाथ अकाउंट डेबिट, साइनाथ अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. और अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, अमाउंट दिया हुआ है 18,000 रुपीज. ओके, 18,000 रुपीज हमें बिल का अमाउंट दिया हुआ है. बिल का अमाउंट इज 18,000 रुपीज. हम यहां क्या लिखेंगे, बिंग बिल डिसऑनर, मतलब ये बिल क्या हो गया था, डिसऑनर हो गया है. बिंग बिल डिसऑनर्ड. उसके बाद अब रोमन नंबर ए में हम लेटर ए में हम क्या रोमन नंबर 2 में जाएंगे. फिर क्या हुआ था, रिन्यूड साइनाथ एक्सेप्टेंस फॉर 18,000 विद इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट की एंट्री आएगी 380 रुपीज. इंटरेस्ट तो ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. हु इज ड्रॉवी, साइनाथ इज द ड्रॉवी. साइनाथ अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है स्टूडेंट्स, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 380 रुपीज एंड 380 रुपीज. यहां पे हम क्या लिखेंगे, बिंग इंटरेस्ट चार्ज्ड. बिंग इंटरेस्ट चार्ज अच्छे से लिखेंगे. आफ्टर दैट अब हम बढ़ेंगे आगे. हम क्या करेंगे, न्यू बिल बनाने वाले हैं. व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू मेक अ न्यू बिल. ओके, तो न्यू बिल बनाने की एंट्री क्या आएगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट. हमको क्या करना है, रिन्यू करना था, बिल रिसीवेबल. ओके, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट आएगा. हमारे पास बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हम क्या लिखेंगे, किसने दिया हमें बिल, साइनाथ ने दिया, टू साइनाथ अकाउंट. और बिल कितने का बना था, 18,380, और यहां से 18,380. ओके, 18,380. हम यहां क्या लिखेंगे, बिंग न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर कितने मंथ्स के लिए, फॉर 2 मंथ्स. यहां पे हमारा ये कंप्लीट एंटायर ट्रांजैक्शन नंबर ए हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होके कंप्लीट हो चुका है. अब हम बढ़ेंगे ट्रांजैक्शन नंबर बी की ओर. ओके, बी में भी क्या होगा, ऑब्वियसली सेम डेट आएगी. वी विल बी राइटिंग 24 अक्टूबर ओवर हियर. 24 अक्टूबर हम ट्रांजैक्शन नंबर अभी क्या करने वाले, बी करने वाले. तो हम यहाँ पे बी लिख देते हैं.
सो लेट्स स्टार्ट। साहिल इन्फॉर्म्स अरविंद, अरविंद मतलब मुझे मुझे मुझे, ओके मैं अरविंद हूं, तो साहिल ने मुझे इन्फॉर्म किया दैट मिनल्स एक्सेप्टेंस, मिनल्स एक्सेप्टेंस मतलब हमारा ड्रॉवी कौन है, मिनल है, मिनल इज द ड्रॉवी ऑफ रुपीज 13,000, बिल का अमाउंट है 13,000, एंडोर्स टू साहिल। अच्छा, तो साहिल ने मुझे बताया कि जैनेश नहीं अरविंद, तेरा जो बिल था ना मिनल वाला वो डिसऑनर हो गया है। वो क्या हो गया है, हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज हुआ है, मतलब बिल डिसऑनर हुआ है, लेकिन बिल किसके पास था, क्या बिल मेरे पास था, नहीं, बिल एंडोर्सी के पास था। तो साहिल ने अरविंद को बताया कि जो मिनल का बिल था वो डिसऑनर हो गया है, डिसऑनर हो गया है। ओके, तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, आई एम द ड्रॉवर, मेरी बुक में क्या एंट्री आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। ड्रॉवी कौन है, ड्रॉवी कौन है, मिनल है, ड्रॉवी इज मिनल, और बिल किसके पास गया था, साहिल के पास गया था। ओके, तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। तो हु इज द ड्रॉवी, मिनल्स अकाउंट डेबिट। कैसे पता चला मिनल ड्रॉवी है, बिकॉज लिखा है मिनल्स एक्सेप्टेंस, तो जिसका भी एक्सेप्टेंस होगा वो कौन होगा, ड्रॉवी बन जाएगा। और ये बात किसके पास थी, ये बिल किसके पास थी, साहिल के पास थी, इसीलिए साहिल ने मुझे इन्फॉर्म किया टू साहिल्स अकाउंट। तो साहिल ने मुझे बताया कि मिनल का बिल हो गया डिसऑनर एंड नोटिंग चार्जेस भी आए, तो उसको इंक्लूड कर देंगे 13,195, 13,195, और यहां लिखेंगे बिंग एंडोर्स्ड बिल, मतलब जो बिल एंडोर्स हो गया था वो क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, डिसऑनर्ड, एंड नोटिंग चार्जेस, ओके, नोटिंग चार्जेस पेड बाय साहिल, साहिल ने पे किया था। ओके, तो पे किसने किया था, साहिल ने, पर अब हम वो चुकाएंगे किसके पास से, मिनल के पास से चुकाएंगे वो पैसा। ओके, तो हमारा बी में सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन था और वो हमने कर दिया है समाप्त। अब हम बढ़ेंगे सी की ओर, सी की ओर। ओके, तो अगेन 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, सी क्या हुआ था, सी में एक्सेप्टेड बिल ऑफ रुपीज 16,400 एट 2 months, हमने बिल एक्सेप्ट किया, हमने बिल एक्सेप्टेड किया। ओके, हमने बिल एक्सेप्ट किया मतलब हम ड्रॉवी है, जो बिल बनाता है ड्रॉ करता है वो ड्रॉवर हो गया, और जो बिल एक्सेप्ट करता है वो कौन होता है, ड्रॉवी होता है। तो इस केस में अरविंद, अरविंद कौन है, ड्रॉवी है, तो हम इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल एंट्री पास करेंगे। तो एक्सेप्ट द बिल ऑफ रुपीज 16,400 एट 2 months ड्रॉन ऑन चंद एंड सन्स। तो ड्रॉन ऑन चंद एंड सन्स मतलब हु इज द ड्रॉवर, चंद एंड सन्स आर द ड्रॉवर फॉर द अमाउंट ड्यू टू देम 19,000 एंड बैलेंस पेड इन कैश। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल कितना चुकाने का था, 19,000 रुपया चुकाने का था। उसमें से हमने क्या किया, 16,400 का बिल बनाया और बैलेंस अमाउंट कैश में पे कर दिया। ओके, ये सब हमने किसको दिया, ये सब हमने दिया चंद एंड सन्स को। ओके, सो हु इज द रिसीवर, चंद एंड सन्स इज द रिसीवर, तो डेबिट द रिसीवर, चंद एंड सन्स अकाउंट डेबिट, इसको हम डेबिट करेंगे, क्यों डेबिट करेंगे, बिकॉज दे आर द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। अच्छा, दे रिसीवर, उनको मैंने क्या क्या दिया, मैंने उनको दो चीज दी, एक तो मैंने उसको बिल दिया। ओके, तो ये मेरे लिए लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल लिखेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट। अच्छा, मुझे टोटल चंद एंड सन्स को कितना चुकाना था, 19,000 रुपए चुकाने थे, 19,000। मैंने बिल कितने का बनाया, 16,400 का बनाया, 16,400 का मैंने बिल बनाया, एंड बैलेंस पेड बाय कैश, तो टू कैश अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। 19,000 में से 16,400 चला गया था, तो 17,400, 18,400 मतलब आएगा 2,600, 2,600। मैंने 2,600 क्या दिया, कैश रोकड़ा दिया। तो यहां लिखेंगे बिंग, क्या लिखेंगे, बिंग, जो क्वेश्चन में लिखा वही हम लिखेंगे, बिंग, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 2 months है ना, तो फॉर 2 months एंड बैलेंस पेड बाय कैश। यहां पे हमारा ये होता हुआ समाप्त। हमने ट्रांजैक्शन नंबर ए, ट्रांजैक्शन नंबर बी और ट्रांजैक्शन नंबर सी कंप्लीट कर दिया है, बट हमारा पेज अब फिनिश हो चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन। यहाँ पे हमारा सम कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ पेज कंप्लीट हुआ है, तो हमें इसका टोटल करना होगा। ओके, हम यहाँ पे टोटल करेंगे, तो फिर लेट्स सी व्हाट इज द टोटल। अच्छा, ये भी अमाउंट डिफिकल्ट है, हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। ओके, कैलकुलेट करना होगा, लेट्स कैलकुलेट। इस अमाउंट को कैलकुलेट मैं यहाँ पे ऊपर कर रहा हूं, 18,000, 380 कितना होता है, 6 7 18,000
061 कैरी, 760, 380, 380, 6760, ठीक है। फिर ये कितना था 13,195, 13,195 और लास्ट में था 19,000। प्लस करेंगे 5 1 कैरी, यहाँ पे 1 कैरी, 9, 8 + 16, 19, 28 2 कैरी, 68,955। यहाँ आएगा 68,955, 68,955। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, कैलकुलेशन फिनिश हो चुका है। और अब हम बढ़ेंगे आगे सम में, बट बिफोर दैट वी हैव टू रब द बोर्ड। ओके, हमने ट्रांजैक्शन ए, बी और सी कंप्लीट कर चुके हैं, सिर्फ डी और ई बाकी है। ओके, फिर हमारा सम हो जाएगा समाप्त। सो लेट्स रब द बोर्ड नाउ। यस, तो वी विल स्टार्ट अगेन। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। देखो मैंने यहाँ पे टोटल अमाउंट लिख दिया 68,955 एंड आई एम राइटिंग ओवर योर बैलेंस ब्रॉट डाउन ऑन द नेक्स्ट पेज। वी हैव कंप्लीटेड 3 ट्रांजैक्शन सो फार। अब हम बढ़ेंगे 4 ट्रांजैक्शन की ओर, और मैं यहाँ पे फिर से डेट लिखूंगा 24 अक्टूबर 2019। और ये हमारा ट्रांजैक्शन नंबर अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन नंबर होगा हमारा ABC हो गया। अब हम D तक पहुंचेंगे। ओके, या सो नाउ लेट्स रीड D1। A हो गया, B हो गया, C हो गया, अब हम D में पहुंचे हैं। बैंक इन्फॉर्म दैट विद्यास एक्सेप्टेंस। तो बैंक ने इन्फॉर्म किया कि विद्या का एक्सेप्टेंस, मतलब विद्या इज द ड्रॉवी, विद्या इज द ड्रॉवी ऑफ 14,000 विच वॉज डिस्काउंटेड। मतलब बैंक के पास जो हमने बिल डिस्काउंट करवाया था, बिल किसके पास है, बैंक के पास जो हमने डिस्काउंट करवाया था, बिल किसका है, विद्या का है। अपन कौन है, अपन अरविंद है। तो बैंक ने बताया कि विद्या का एक्सेप्टेंस हो चुका है डिसऑनर। वो क्या हो गया, बिल हो गया है डिसऑनर हो चुका है। एंड नोटिंग चार्जेस 105, तो नोटिंग चार्जेस भी पे करना पड़ेगा 105। तो बिल डिसऑनर की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू बिल, जिधर गया उधर। हु इज द ड्रॉवी, हु इज द ड्रॉवी, हु इज द ड्रॉवी, टेल मी, विद्या इज द ड्रॉवी। ओके, तो हम लिखेंगे विद्यास अकाउंट डेबिट, विद्यास अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बिल टोटल कितने का था, 13,000 का बिल था, नहीं सॉरी 14,000 का बिल था, 14,000 रुपीज का बिल था। और नोटिंग चार्जेस कितना आया 105, 14,105, 14,105। ओके, और यहां हम लिखेंगे बिंग बिल, बिंग डिस्काउंटेड बिल। बिल किसके पास था, बैंक के पास था। यस, तो बिंग बिल डिस्काउंटेड बिल, और वो बिल क्या हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर। ये विद्या अच्छी लड़की नहीं निकली, उसने क्या किया, बिल डिसऑनर कर दिया। बिंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस किसने पे किया था, फिलहाल नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, नोटिंग चार्जेस हमने पे किया, बिल बैंक ने पे किया। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद ये हुआ था दैट रिन्यूड बिल, रिन्यू बिल मतलब ओल्ड बिल को पहले कैंसिल कर दिया। रिन्यू बिल ऑन विद्यास रिक्वेस्ट फॉर 2 months विद इंटरेस्ट 295। अच्छा, तो क्या हुआ, अब हम इंटरेस्ट की एंट्री करेंगे और न्यू बिल की एंट्री करेंगे। मतलब ट्रांजैक्शन डी में ये हमारा रोमन नंबर 1 हो गया। अब रोमन नंबर 2 करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करना। इंटरेस्ट की एंट्री क्या आएगी, ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। हु इज ड्रॉवी, विद्या। ओके, विद्या बादल नहीं है वो, विद्यास अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट का अमाउंट था 295। तो हम यहां पे क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे बिंग इंटरेस्ट चार्ज, बिंग इंटरेस्ट चार्ज। यहां हम करेंगे इसको फिनिश। एंड फाइनली रोमन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, न्यू बिल बनाएंगे। तो बिल बनाने की एंट्री क्या आती है, वी ऑल नो दैट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हु इज द ड्रॉवी, विद्यास अकाउंट टू विद्यास अकाउंट। ओके, तो टोटल बिल कितने का बनेगा, 14,105 तो बाकी था, प्लस 295 दैट मीन 0 1 कैरी 0 1 कैरी 400, तो 14,400 नया बिल बना 14,400 रुपए का। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा बिल बन गया 14,400 रुपए का। इसको हम ग्राफ कर देंगे और यहां लिखेंगे बिंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस received for how many months, received for
2 months और हमने न्यू बिल का एक्सेप्टेंस रिसीव किया 2 months के लिए और यहाँ पे हमारा ट्रांजैक्शन नंबर डी होता हुआ समाप्त। अब लास्ट बचा है ट्रांजैक्शन नंबर ई बचा है हमारे लिए, ट्रांजैक्शन नंबर ई बचा है। फाइनली व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू चेंज द मार्कर, गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो लेट्स होप दिस मार्कर विल वर्क। गोइंग फॉर द ई ट्रांजैक्शन लिखा है नंदिता रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस, नंदिता रिटायर्स हर एक्सेप्टेंस, मतलब नंदिता इज द ड्रॉवी, हम कौन है, ड्रॉवर है। ओके, टू अरविंद 13,550 बाय पेइंग 13,000, बिल कितने का था 13,550, उसने हमको कितना दिया, सिर्फ 13,000 दिया, सिर्फ 13,000 दिया। ओके, तो रिटायर की एंट्री आएगी कैश बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अच्छा, बिल कितने का था 13,550, 13,550, उसमें से हमको कितना मिला, सिर्फ 13,000 रुपया मिला। ओके, रिसीव कैश खाली 13,000 आया, मतलब 550 हो गया। रिबेट यहां हम लिखेंगे बिंग बिल रिटायर फ्रॉम हर्ट हो गया। ओके, अब हम फाइनली करेंगे इसको टोटल, और टोटल करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। अगेन दैट अमाउंट इज क्वाइट डिफिकल्ट, सो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे कैलकुलेट करना होगा 6,8,955 प्लस 14,105 प्लस 295 और 14,195 को ओके, जस्ट अ सेकेंड। सो ये क्या होगा 14,000, 295, 395, 400, फिर ये क्या आएगा 14,400 और फाइनली 13,550, 13,550। ओके, तो ये आएगा 5, ये भी आएगा यहाँ पे 0, 1 कैरी, 10, 14, 18, 18 प्लस 5, 3, 2 कैरी, 10, 14, 18, 18 प्लस 3, 1, 2 कैरी, 8, 9, 10, 11, 1,11,205, 1,11,205, 1,11,205। तो यहां पे हमारा क्या होता हुआ, यहां पे हमारा सम होता हुआ ऑलमोस्ट समाप्त। विल जस्ट सी दैट वंस। या सो इसको हम ग्रब करेंगे अच्छे से एंड यहाँ पे हमारा सम हो जाएगा समान 205, 400, 800, ओहो या सो यहाँ पे हमारा एंटायर सम होता हुआ समाप्त प्रॉपर्ली। यू हैव सीन व्हाट वी हैव डन, हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस को एकदम सिस्टमैटिकली एक एक ट्रांजैक्शन को सॉल्व किया है। जिस ट्रांजैक्शन के अंदर 2 से 3 एंट्री होगी उसको रोमन नंबर वाइज डालेंगे एंड एवरी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन विल हैव द डेट। ओके, हर ट्रांजैक्शन में डेट आना कंपलसरी है, यहाँ पे भी लिखेंगे 24 अक्टूबर। ओके, डेट इज वेरी कंपलसरी, व्हाटएवर डेट इज गिवन टू अस हम सारे ट्रांजैक्शन में सेम डेट लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसी के साथ अलविदा लेंगे और वीडियो में और ढेर सारे सम्स करेंगे, हम और अकाउंट्स पढ़ते जाएंगे। तब तक सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और कोरोना वायरस से बचते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, enjoy your home quarantine, enjoy the homework and keep studying. You have a test. Bye.